Hello dear students, today I am going to start new chapter under the Organization of Commerce and Management subject Standard 11 Commerce. Chapter number 2, session number 1 of Business Services 1. We already discussed some of the basic information related to the economic activity, non-economic activity. Also we discussed and I gave the basic information of three economic activity: business, profession and employment with characteristics and business objectives. Also we discussed the comparison between these three, and then after we discussed the different categories under the business, okay, that is trade, commerce, both with the characteristics, meaning and examples, and then after lastly I gave the difference between that of two, trade and commerce. And the last point we discussed in the last session, that is industry under the third category of business, enterprise, that is the primary, secondary and tertiary. So that's all from that chapter number 1. Let's start with the business services. Now in commerce I gave the definition and gave the meaning of the particular commerce, that commerce means trade and its auxiliary services, and auxiliary services includes the different list जैसे banking, insurance, communication, transportation, right? List is very long, okay? Different type of these services are available. Also in tertiary services this list was repeated. So let's start with that services under this chapter number 2. We have in this chapter 4 different services: insurance, postal, go down, that is warehouse, and transportation. And the main service that is related to the our transactions of the money, right, that is related to the banking. The third chapter is totally of that one, and fourth chapter that is of communication. With that communication, that business related and also internet related information is there. So then after we'll start the different forms of the business organization. Now here business services kya hai. So today I will start and give the information related to the particular first, that is insurance. So let's start with the introduction part. Importance of services are increasing in an economy day by day, decade by decade. We can say the different services. In past also we used different services, right? But it was not on paper. It was only on the basis of the some past information. But nowadays everything is on paper. Everything is available. So we can say that different services are very important, and it is increasing, and it will increase also in future. That different services. So there is a rise in the facilities and convenience due to services like banking, insurance, postal, storage and warehouse, we can say, and also transportation, etc. So here these services, right, rise in the facilities. हमें ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा प्राप्त होती है और हम ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाते हैं हमारा काम करने के लिए बिकॉज ऑफ दिस सर्विसेज. वॉट एवर द सर्विसेज आर अवेलेबल, उसकी वजह से वी कैन इंक्रीज आवर वर्क, वी कैन इम्प्रोवाइज आवर वर्क. हम हमारा काम अच्छा कर सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं. ओके, सो ये सर्विसेज का लिस्ट बहुत छोटा है, बहुत सर्विसेज है, लंबा लिस्ट है, लेकिन हम सबको यहाँ कवर नहीं कर सकते, इसलिए 4-5 सर्विसेज को हम देखेंगे. सो दिस सर्विसेज आर जस्ट नॉट हेल्पफुल इन द बिजनेस एज अ पार्ट ऑफ कॉमर्स, but they extend to facilitate industries, agriculture and other business activities. So these services will increase your selling, maybe in future it will increase your profit, maybe you can get the benefits in a longer time period because of these services. But as you know that one, that these services are not only to support the business as we discuss in commerce, यानी in particular commerce related information we discuss with the characteristics. उसमें हमने देखा था कि ये सर्विसेज को सपोर्टिव है, लेकिन अकेला एक कॉमर्स के हिसाब से बिजनेस को सपोर्ट नहीं करता है, बट ऑल्सो ये फैसिलिट करता है होल इंडस्ट्रियल सेक्टर को, एग्रीकल्चर सेक्टर को, राइट, कई अलग अलग बिजनेस को, तो ये सबको ये फैसिलिट करता है अलग से. सो कीप इन माइंड दिस थिंग कि इट इज़ हेल्पफुल एज अ पार्ट ऑफ कॉमर्स बट एक्सटेंड द फैसिलिटीज टू इंडस्ट्रीज, agriculture and other business activities. The list is very long. So services like banking, insurance, postal, storage and transportation have undergone so much of change that they just do not only work as business services but also as social and family related services. So in past we use the banking services, insurance, postal, storage, transportation. आपने सब सर्विस किसी ना किसी तरीके यूज़ किया है. हालांकि आप कॉमर्स स्टूडेंट हो तो आप इसके डीप में अभी जाओगे, लेकिन सब सर्विसेज का हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली बिजनेस के सिवा भी बेनिफिट ले चुके हैं. सो आवर कंट्री, जो यहाँ पर हम हमारी कंट्री में रहते हैं, हाँ ये सर्विसेज जो भी है उसका अभी जो वे ऑफ प्रेजेंटेशन है थोड़ा बदल गया है, पूरे वर्ल्ड में भी वैसे बदल गया है. ओके, सो मच चेंजेस आर देयर.
सो दे आर नॉट ओनली वर्किंग अंडर द बिजनेस सर्विसेज, अकेले ये बिजनेस सर्विस नहीं प्रोवाइड करते। मैंने बोला कि हमने उसका बेनिफिट ऑलरेडी ले चुके हैं एज अ सोशल एंड फैमिली रिलेटेड सर्विसेज। हालांकि पोस्टल सर्विस है तो पोस्टल थोड़ी ना हम अकेला बिजनेस के लिए यूज़ करते हैं, उसको हमने हमारे पर्सनली उसके लिए पहले यूज़ किया हुआ है, अभी भी उसका यूज़ करते हैं। ओके, सो सी बैंकिंग सर्विसेज इंडिविजुअल के लिए ज़रूरी है, स्टोरेज सर्विस भी हमारे लिए, तो ये हालांकि अकेला बिजनेस के लिए नहीं है, ये सोशल और फैमिली के लिए भी ज़रूरी है। सो इन मॉडर्न एज अभी की बात करें तो देर आर वेराइटीज़ एंड स्पेशलिटीज़ सीन इन सच सर्विसेज। तो नाउ डेज डिफरेंट टाइप ऑफ द सर्विसेज आर देयर। फॉर एग्जाम्पल पोस्टल, अभी जो आप 11 में पढ़ रहे हो शायद आप में से कई लोगों ने पोस्ट क्या है वही नहीं देखा है, आपको मालूम ही नहीं पोस्ट कैसे किया जाता है, शायद 10% को बात करके, राइट, 50 या 52 में से 5-10 को लोगों को मालूम होगा, बाकी पोस्ट में कोई गया नहीं, बिकॉज एवरीथिंग नाउ डेज इज ऑनलाइन, यानी इंटरनेट पे सब कुछ हो जाता है, तो आप पोस्ट की विजिट ही नहीं ली है आपने, आपको कैसे मालूम होगा पोस्टल सर्विसेज क्या है। सो दैट्स वाई पोस्टल सर्विसेज आर नाउ टोटली चेंज, आप उसमें भी ऑनलाइन कुछ कर सकते हो, दैट इज डिपेंड अपॉन द टाइम पीरियड। ओके, सो समथिंग इज डिफरेंट दैन दिस। तो नाउ द स्पेशलिटीज आर सीन इन दिस ऑल सर्विसेज। बैंकिंग में भी सब ऑनलाइन हुआ, देयर इज नो नीड टू विजिट द प्लेस ऑफ बैंक, राइट, हमें वहाँ पर्सनली नहीं जाना पड़ता है, वी आर गेटिंग द बेनिफिट्स फ्रॉम होम, राइट, विथ वन टच। Net banking, digital banking, everything is available, online payments, right, different type of the apps are there, UPIs are there, so you connect your account, now everything is possible, you can deposit and withdraw the money, सब कुछ possible है अब तो, right, without visiting the bank. So all these institutions have become naturally interdependent. अब ये सब अपने आप से किसी न किसी तरह जुड़े हुए हैं, right? वो कैसे जुड़े हुए हैं ये वन बाय वन हम देखेंगे, लेकिन कनेक्शंस बिजनेस के, फैमिली के, सोशल, सब बिजनेस एक दूसरे के साथ है, वैसे ये सर्विसेज भी कनेक्टेड है। सो सिंपली लेट्स मूव टू द फर्स्ट सर्विस, दैट इज इंश्योरेंस सर्विस। आज हम देखेंगे मीनिंग और थोड़े बहुत प्रिंसिपल्स उसके। सो ये इंश्योरेंस क्या है? आपको मालूम है फ्यूचर इज अनसर्टेन, मैं अभी क्या कर रहा हूँ, कल मैं क्या करूँगा और मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या होगा, आई डोंट नो, कुछ भी हो सकता है, फ्यूचर इज़ अनसर्टेन। सो हाउ टू सिक्योर द फ्यूचर, हाउ टू कम आउट ऑफ दिस सम टाइप ऑफ द प्रॉब्लम्स विच विल अराइज इन फ्यूचर। हमारा फ्यूचर 101% अनसर्टेन है, तो रिस्क तो है, हमने बिजनेस में देखा, तो बिजनेस में रिस्क है व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग मनी, तो यहाँ पर आप खुद हो जो कुछ ना कुछ तरीके से रिस्क फेस कर रहे हो, यानी इन द सेंस ऑफ द सम ऑफ द डिसीज, इन द सेंस ऑफ द सब पैंडेमिक, इन द सेंस ऑफ द सम ऑफ द प्रॉब्लम्स इन द सोसाइटी, इन द सेंस ऑफ द सम ऑफ द वर्क, राइट, वॉट एवर। सो व्हेन यू आर इन बिजनेस, वी ऑलरेडी डिस्कस दैट नेचुरल एंड मैन मेड रिस्क, तो ये रिस्क कभी भी आ सकता है, तो वी कांट सी नेचुरल रिस्क को हम कभी भी यहाँ हमारे सामने आए तो उससे हम छूट नहीं सकते। सो वी कैन कम आउट फ्रॉम द नेचुरल रिस्क, वी कैन कम आउट फ्रॉम द सम ऑफ द मैन मेड रिस्क। सो ये जो रिस्क कभी आ सकता है तो उसको हम हटा नहीं सकते, लेकिन यस वी कैन रिड्यूस द रिस्क, वो भी मैंने डिस्कस किया था फर्स्ट चैप्टर में। सो हाउ वी विल रिड्यूस द रिस्क, हम हमारे ऊपर लगा जो रिस्क है, राइट, जो जोखम है हमारे ऊपर, वो कैसे हम कम कर सकते हैं। सो बाय टेकिंग इंश्योरेंस। तो कैसे? फॉर एग्जांपल मैनमेड है, तो मैनमेड में आपको मालूम है कि मैनमेड में चोरी होती है, थेफ्ट, लूट होती है, यानी जिसको हम रॉबरी बोलते हैं, राइट। कई ऐसी चीज़ें हैं जो शायद हम उससे बाहर आ सकते हैं, तो उसके लिए इंश्योरेंस ले लो, ओके, प्रीमियम पे करो, वो आपको सब मालूम है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा डिटेल जाएगा तो आप उसको समझ सकोगे कि इंश्योरेंस क्यों लेना होता है, नॉट ओनली फॉर द particular business but also for the individual, for society and family. Let's start with the insurance with the meaning. Insurance refers to that written contract or agreement between two parties through which the insuree pays premium. ये insuree मानी बताता हूँ मैं, पहले एक बार ये समझ लो। insuree pays premium and as against getting an undertaking from the insurer that he will be compensated as per the risk cover and द अमाउंट डिसाइडेड फॉर द फाइनेंशियल लॉस। अब ये एक स्टेटमेंट टाइप है, पूरा पैराग्राफ है, लेकिन ये बहुत कुछ कह जाता है। एक ही पैराग्राफ में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है हमारे पास कि इंश्योरेंस क्या रिफर्स करता है। वो एक रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट है, लिखा हुआ होना ही चाहिए, कंपल्सरी, एक एग्रीमेंट है, ओके। अब एग्रीमेंट होगा तो ओनली 1% के बीच तो नहीं होगा, तो रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज, दो पार्टी के बीच ये कॉन्ट्रैक्ट होता है। इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है?
with things are included. So through this one, the insurer means the person who is taking insurance, जिसको लगता है कि मेरे ऊपर रिस्क है किसी चीज़ का, वो है इंश्योरी. वो इंश्योरी जो है वो पेश करेगा प्रीमियम यानी for the security you are paying money to the one company, those who will give the surety that we will give the financial benefit if you will face the loss, if you will under the risk. हम आपको इस रिस्क के सामने कुछ फाइनेंशियल रिटर्न देंगे सो आप उसमें से बाहर आ सको. सो द इंश्योरी पेज द प्रीमियम, वो प्रीमियम पे करता है. एंड एज अगेंस्ट गेटिंग एन अंडरटेकिंग फ्रॉम द इंश्योरर, तो ये प्रीमियम भरने के सामने उसको क्या मिलता है, इंश्योरर, यानी कि जो कंपनी इंश्योरेंस का रिस्क कम करने के लिए आपको इंश्योरेंस पॉलिसी दे रही है, आपको एक गारंटी वारंटी और आपको एक पर्टिकुलर रिटर्न में दे रही है कि इफ दिस टाइप ऑफ द रिस्क विल अराइज वी आर हियर, तो वो इंश्योरर है. राइट, मोस्टली ये कंपनीज होती है. राइट, तो वो अंडरटेकिंग क्या करता है, गेटिंग एन अंडरटेकिंग फ्रॉम द इंश्योरेंस दैट ही विल बी कंपेंसेटेड, यानी जिसने पॉलिसी ली है इंश्योरी ने, वो कंपनसेट होगा एज पर द रिस्क. तो आपको उसके सामने वर्तर मिलेगा. वर्तर सामान्य गुजराती में આપણે વર્તન શબ્દ કહે છે, બટ વી કેન સે કે વોટ એવર ધ रिस्क इज देयर अगेंस्ट यू विल गेट द फाइनेंशियल रिटर्न्स, दैट इज कंपनसेशन. आप कुछ भी काम करते हो उसके सामने आपको जो भी फाइनेंशियल मिलता है एज पर योर पॉलिसी, वो कंपनसेशन है, वर्तर. राइट, आमना बदलाમાં જે પણ હોય, तो एज पर दैट वर्क यू विल, एज पर दैट पर्टिकुलर रिस्क यू विल कंपनसेटेड. जो रिस्क कवर हुआ है वही, आपने जितनी पॉलिसी ली है, आपने जितना इंश्योरेंस को पैसा दिया है, उसके हिसाब से जो भी है उसका कवर होगा. एंड ऑल्सो द अमाउंट डिसाइडेड फॉर द फाइनेंशियल लॉस. ओके, सो रिस्क जो भी कवर होगा वो, एंड ऑल्सो वॉट एवर द अमाउंट डिसाइडेड. अगर आपने ₹1,00,000 की पॉलिसी लिया तो यू विल गेट बेनिफिटेड विद द ₹1,00,000 ओनली, नॉट मोर देन दैट वन. ओके, बिकॉज आपको ऐसा लगता है कि मेरा रिस्क जो है वो लाख से कम नहीं होगा, तो डिपेंड अपॉन दैट वन यू कैन टेक द पॉलिसी ऑफ दैट ₹1,00,000. सो कीप इन माइंड द पर्टिकुलर पैराग्राफ. आपको समझ में आ चुका होगा, सेशंस में भी हम देख लेंगे. नाउ अगर आपको मीनिंग लिखना है तो ये लिख सकते हो, डोंट वरी, लेकिन ये नहीं लिखना है इंट्रोडक्टरी पार्ट में, सीधा मीनिंग लिखना है तो ये लिखो, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इन अ रिटर्न फॉर्म इज नोन एज इंश्योरेंस पॉलिसी. तो अगर इंश्योरेंस ये है, राइट, इंश्योरेंस आपको मालूम पड़ गया, लेकिन आपको पॉलिसी के बारे में पूछा जाए तो जो ये सब कुछ यहाँ पर दिया है वो रिटर्न फॉर्म में आएगा, उसको हम बोलेंगे इंश्योरेंस पॉलिसी. जो भी अंदर लिखा है, जो भी आएगा वो लिखित में होगा, दैट इज कॉल्ड पॉलिसी, इंश्योरेंस पॉलिसी. और पॉलिसी वर्ड मोस्टली जब इंश्योरेंस के साथ हम जोड़ते हैं तो सब लिखित में होता है. नाउ इंश्योरेंस डज नॉट रिमूव द रिस्क इन्वॉल्व, बट इट कंपनसेट्स फॉर द फाइनेंशियल लॉस कोज्ड बाय दैट रिस्क. मैंने पहले ये डिस्कस कर दिया कि इंश्योरेंस पॉलिसी आप लेते हो, इंश्योरेंस लेने के बाद वो आपका रिस्क है वो तो रिमूव तो नहीं करेगा. कौन गारंटी देता है कि आपका रिस्क नहीं होगा? अगर रिस्क भी मालूम है तो कब आएगा हमें नहीं मालूम है. राइट, सो रिस्क रिमूव नहीं करता, लेकिन वो रिस्क जो इन्वॉल्व है उसके सामने, राइट, वो कंपनसेट करता है विद द फाइनेंशियल लॉस. जो फाइनेंशियल आपको लॉस हुआ है वो रिस्क के तौर पर वो आपके पर्टिकुलर बिजनेस में या इंडिविजुअली या फिर सोशली जो भी है वो रिस्क के सामने आपको फाइनेंशियल रिटर्न मिलेगा. सो दैट इज द इंट्रोडक्टरी पार्ट. नाउ लेट्स मूव टू सम ऑफ द प्रिंसिपल्स. राइट, सम ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस. इंश्योरेंस के कई प्रिंसिपल्स हैं, सिद्धांत जिसको बोलते हैं, कि द रूट्स ऑफ द इंश्योरेंस आर कनेक्टेड विद द सोसाइटी. जब भी इंश्योरेंस की बात आए तो सोसाइटी इज ऑलवेज एट देयर, एंड इट इज़ एन एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज. ये हमने देख लिया. सो इंश्योरेंस इज नॉट अ सिंपल और ऑर्डिनरी कॉन्ट्रैक्ट एंड इट कैन नॉट बी रिलेटेड टू लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. ये सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ है उस पर वो नहीं जाता है. ओके, वी कैन नॉट से कि लिखा हुआ है तो होगा, नो, इट इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड विद द सोसाइटी. इट इज़ नॉट अ सिंपल एंड ऑर्डिनरी कॉन्ट्रैक्ट. ये बहुत मायने रखती हुई चीज़ है. ओके, वो सीधी कॉन्ट्रैक्ट पर लिखा है, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है ना, उसमें कई चीज़ें ऐसी होती है जो हमारे बिजनेस के लिए भी जरूरी है. सो इट इज़ अ स्पेशल फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड हैंस अपार्ट फ्रॉम लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट द फॉलोइंग स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स आर ऑल्सो अप्लीकेबल. सो जो भी लॉ है वो है ना, लॉ है 1960, 61 जो भी सब आएगा वो उसके हिसाब से हम देखेंगे. लेकिन जो अलग अलग एक्ट बने हुए हैं, स्पेशल एक्ट हुए, राइट, इंश्योरेंस जब वो शुरू हुआ पहली बार तो वो जो पर्टिकुलर टाइम पीरियड था वहाँ पर इसकी क्यों ज़रूरत हुई, ये सब है सिलेबस में, बाद में देखेंगे हम. लेकिन आपको याद यही रखना है कि स्पेशल फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन उसका एक एक्ट भी है. लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट में जो भी लिखा हुआ है, राइट, सो वो तो हमको एक्सेप्ट करना ही है. लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज सेट, बट सम ऑफ द स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स आर अवेलेबल इन द पर्टिकुलर इंश्योरेंस. तो ऐसे टोटल 4 प्रिंसिपल है.
वो प्रिंसिपल को हमें फॉलो करना पड़ेगा। पहला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। अब शुरुआत करने से पहले मैं समझा देता हूँ कि अगर आप किसी के साथ काम करते हो तो दोनों साइड ट्रस्ट होना चाहिए। अगर एक ही साइड पे आप काम करते हो, वन साइडेड हो, आपको सामने वाली पार्टी पर ट्रस्ट नहीं है, तो ये पॉसिबिलिटी है कि शायद किसी न किसी तरह अविश्वास, डिस्ट्रस्ट क्रिएट होगा। तो ये डिस्ट्रस्ट नहीं होना चाहिए। तो यही ये हमारा जो पहला प्रिंसिपल है वो समझाता है कि अटमोस्ट गुड फेथ, दोनों को एक दूसरे के ऊपर फेथ रखना पड़ेगा, ट्रस्ट रखना पड़ेगा। लेट्स सी, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी ऑफ मेकिंग प्रॉफिट। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। जब भी इंश्योरेंस आता है उनका कोई भी ऑब्जेक्टिव ऐसा नहीं है कि वो प्रॉफिट कमाए, हालांकि वो कमाते हैं, राइट, वो सही बात है, लेकिन उनका मेन ऑब्जेक्टिव तो ये है ही नहीं। सो वी कैन से कि वॉट एवर द प्रीमियम्स आर कलेक्टेड बाय द इंश्योरेंस कंपनी, राइट, दैट इज़ फ्रॉम द इंश्योरी, यानी जो इंश्योरर है वो इंश्योरी से पैसे जो ले रहा है वो प्रीमियम के तौर पर, उसका बेनिफिट उसको इन फ्यूचर में मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन वो प्रॉफिट में कन्वर्ट नहीं होगा। So main objective is not to earn profit. So it is only to have compensation for financial loss. So that insurance company is taking the benefit of that premiums and taking the financial output from the or whatever the premiums are paid by the insurance company, insuree जो पे करता है वो, right, वो अपनी रिस्क को बचाने के लिए करता है। यानी से आप बाहर निकलते हो, पहले एक बात समझा दूँ कि आप घर से बाहर निकलते हो तो एक्सीडेंट का रिस्क है, आप दुकान का शटर खोलते हो, राइट, तो लॉस का रिस्क है। कई बार नेचुरल रिस्क ऐसे होते हैं कुछ कह के नहीं आते। कई बार दुकान को रात को बंद करके घर चले गए, रात को हैवी रेन हो गया, आपके घर से शॉप बहुत दूर है, आप पहुँचो तब तक तो पानी भर चुका होता है, तो ये भी एक रिस्क है, ये नेचुरल रिस्क है, राइट, हैवी रेन। कई बार ऐसा होता है कि मैनमेड रिस्क में रात को आपने बंद किया और चोरी हो गई, रॉबरी हो गई, पूरी दुकान को लूट लिया गया, ये भी रिस्क है। तो इसके सामने आपको कुछ तो कंपनसेशन मिलेगा बिकॉज ऑफ यू टुक ऑलरेडी द पॉलिसी, यू ऑलरेडी एंटर इन द बिजनेस सर्विसेज दैट इज इंश्योरेंस। तो आपने ये जो पॉलिसी ली है उसका प्रीमियम्स पे किया है, वैसे ही कोई कुछ नहीं देता, दे ऑलरेडी टेक द प्रीमियम्स फ्रॉम यू, यानी यू पेड द प्रीमियम्स, राइट। आपने जो पैसे उनको दिए हैं सेफ्टी के लिए, लॉस को कवर करने के लिए, मैनमेड और जो नेचुरल रिस्क है उसमें से बाहर आने के लिए, उसके सामने वो लोग आपको पैसे वापस दे रहे हैं, राइट। हर बार तो ऐसा होता नहीं, 100 में से यही 2, 3, 4, 5 के साथ ही ऐसा होता है, बाकी के उनके पास पड़े ही रहते। ऐसा ही नहीं है कि वो पड़े रहते तो उसका मिसयूज़ होता है, वो भी सही मायने में डेवलपमेंट के लिए यूज़ होते हैं। लेकिन यहाँ पर यही चीज़ याद रखो कि व्हेन यू आर अंडर द फाइनेंशियल लॉस यू विल गेट द कंपेंसेशन, यू विल कंपेंसेटेड विद द फाइनेंशियल लॉस विच इज़ कवर्ड अंडर द पॉलिसी। तो आपकी पॉलिसी के अंदर जो भी कवर होगा वो आपको बता दिया जाएगा। So here the basic law of insurance is a social concept. So keep in mind this thing. The main profit is not that means profit is there, but वो main objective नहीं है, main objective है social concept. सोसाइटी में कुछ उनकी एक पर्टिकुलर जो इंश्योरेंस की जो हमने हमारे दिमाग में जो एक मेंटालिटी बनाई है, एक कॉन्सेप्ट बनाया कि ये लोग प्रॉफिट अर्न करते हैं ना, दे आर ऑलवेज प्रोवाइडिंग सोशल सर्विस, लेकिन प्रॉफिट नहीं है ऐसा भी नहीं है। As such, the parties involved in the insurance contract should have mutual and complete faith. जो भी पार्टीज इसमें इन्वॉल्व होती है उन दोनों के बीच कुछ ना कुछ फेथ होना चाहिए, उन दोनों के बीच म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, और ये जो म्यूचुअल एंड कंप्लीट फेथ है वो ज़रूरी है। ट्रस्ट, श्रद्धा जिसको हम बोलते हैं, वो होनी चाहिए। While entering into a contract, both the parties should provide all informations required regarding the insurance product. यहाँ प्रोडक्ट यानी इंश्योरेंस पॉलिसी, वॉट एवर विच टाइप ऑफ द प्रोडक्ट यू आर परचेजिंग, राइट, फॉर शॉप, फॉर रॉबरी, फॉर थेफ्ट, फॉर रेन, फॉर नेचुरल, वॉट एवर, जिसके लिए आप वो पॉलिसी लेते हो, फॉर अर्थक्वेक, राइट, अब तो सब कुछ आ गया ना, तो कोविड इज ऑल्सो देयर। तो जिसके लिए आप पॉलिसी लेते हो तो उसके रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन आपको देनी पड़ती है। अगर आप डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर पूछे कि आपको क्या हो रहा है, राइट, विच टाइप ऑफ द प्रॉब्लम आर यू फेसिंग, सो सर मुझे खांसी आ रही है, राइट, सो डॉक्टर बोलेंगे चलो अच्छा ठीक है, ये पर्टिकुलर दवा ले लो, 1-2 दिन के बाद देखेंगे। 1-2 दिन के बाद देखा उन्होंने तो चलो आपको अच्छा हो गया तो छोड़ दिया, लेकिन अच्छा नहीं हुआ तो फिर उसके अंदर जाएंगे, देखेंगे, एक्सरे होगा, उसके बाद CT स्कैन होगा, बहुत आगे निकल गए हम, लेकिन ये सब धीरे धीरे आगे होगा। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि वो आपका डिसीज़ ढूंढना चाहते हैं, राइट। तो यहाँ पर ही मैं इसलिए समझाता हूँ आपको कि जब भी आप कोई इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हो
तो सामने वाले को यानी कि इंश्योरर आप हो, सॉरी इंश्योर यू आप, और इंश्योरर आपको कुछ डिमांड करता है इन्फॉर्मेशन को, आप उनको बताओ। कई बार ऐसा भी होता है कि आई एम सफरिंग विथ वन डिजीज़ और मैं पॉलिसी ले रहा हूँ और 1 साल में मर जाता हूँ, और मैंने पॉलिसी ले ली है पूरे 5 करोड़ रुपीज़ की, और मैंने प्रीमियम भी 1 साल में हर महीने जो 1 लाख 2 लाख बनना होता मैं भर दिया, यानी मैंने पेमेंट किया सिर्फ 15 लाख का, और मैं पॉलिसी का जो बेनिफिट है वो मरने के बाद मेरी फैमिली को पूरा वो जितना भी करोड़ों का मैंने बोला वो ले। सो ऐसा तो नहीं चलता है ना, नहीं चलता है। सो दैट्स वाई नाउ डेज इट इज़ कंपलसरी कि जब आप पॉलिसी हेल्थ रिलेटेड लेते हो तो आपका हेल्थ चेकअप होता है, क्योंकि उसमें भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता था, राइट, उसमें भी फ्रॉड होने लगे थे इसलिए। सो वाइल टेकिंग एन इंश्योरेंस पॉलिसी इवन while entering into the contract both the parties must have to provide all information required with the policy। जो भी इंफॉर्मेशन मांगे हमें उन्हें देनी चाहिए, और सामने वाले को यानी इंश्योरेंस कंपनियों को भी हमें वो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए, क्योंकि कंडीशन सप्लाई के तौर पे बहुत छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन लिखी होती है, हमारे पास ऐसा टाइम नहीं होता है कि हम पढ़ें, हालांकि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमको पढ़ने के बाद ही साइन करनी चाहिए, लेकिन हम नहीं पढ़ते क्योंकि हम सामने वाले एजेंट के ऊपर ट्रस्ट रखते हैं इसलिए। So while taking an insurance policy, even if the information is not asked by either parties, यानी समझ लो कि इंश्योरी ने कुछ नहीं पूछा और इंश्योरर ने भी कुछ नहीं बताया, और इंश्योरर ने भी कुछ नहीं बताया और इंश्योरी ने भी कुछ नहीं पूछा, ये सब होता है। तो आइदर पार्टीज जो भी है, पूछा नहीं पूछा, राइट, बोथ शुड प्रोवाइड इट, दोनों को देनी चाहिए, बात पूछनी चाहिए और एक दूसरे के साथ शेयर करनी चाहिए। इफ इट इज़ फेल्ट दैट इट कैन हैव एन इम्पैक्ट ऑन द कॉन्ट्रैक्ट, अगर बताएंगे तो अच्छा ही है, नहीं बताएंगे तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होगा इन फ्यूचर। सो सिंपली एनी इंश्योरेंस एग्रीमेंट, यानी वो शुरुआत ही कॉन्ट्रैक्ट से हुआ था, एग्रीमेंट से हुआ था। सो व्हेन एनी इंश्योरेंस एग्रीमेंट एंटर्ड नॉट हैविंग द नेसेसरी इंफॉर्मेशन अमाउंट्स टू फ्रॉड, तो जब कभी भी आप कोई भी इंफॉर्मेशन मिस कर जाते हो, इंटेंशनली नहीं बताते हो, राइट, तो व्हाट विल हैपन? Because of agreement, whatever the information is there, whatever the conditions are there, you have to follow that one, both the parties follow that one, okay? So they are enter an agreement, sometimes they are not having the necessary information amounts to fraud, and it is against the principle of utmost good faith। तो अगर ऐसा होता है, अगर पूरी इन्फॉर्मेशन आप नहीं देते हो और कुछ फ्रॉड होता है, राइट, तो फिर उसके लिए कौन जिम्मेदार है? अगर यही काम जो पार्टीज थी इंश्योरेंस कंपनी उसने किया है, या फिर हमारी लैंग्वेज में बोला जाए तो मैंने किया क्योंकि मैं इंश्योरेंस ले रहा हूँ, तो इट इज़ अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। यानी एक चीज़ याद रखो कि एग्रीमेंट के हिसाब से जब आप दोनों एक साथ एग्रीमेंट में एंटर हो रहे हो तो नेसेसरी इन्फॉर्मेशन पास ऑन करो। अगर कोई भी गफलत हुई, फ्रॉड हुआ, तो वो प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट के खिलाफ होगा। सो व्हेन एवर इट कम्स टू बी नोन दैट द प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ इज ब्रोकन, the insurance agreement or policy stands null and void, and the insurer cannot get back the whatever premium already paid, and he loses the right of compensation for the risk। तो यहाँ पर पूरा जो भी काम है वो इंश्योरी के हिसाब से याद रखना, ये दोनों इंश्योरी इंश्योरी मीन्स जो पॉलिसी लेता है और इंश्योरर मीन्स जो पॉलिसी लेता है, तो ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इंश्योरी की है क्योंकि वही फ्रॉड करने की सोच रहा होता है। ऐसा मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि उसको कोई डिसीज़ है, उसका कोई शॉप है, उसमें कोई प्रॉब्लम है, उसके हिसाब से वो शायद पॉलिसी ले रहा है। तो अगर ये कुछ प्रॉब्लम फ्रॉड हुआ तो जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, अटमोस्ट गुड फेथ ब्रेक हुआ पॉलिसी का, तो पॉलिसी तो जाएगी, नल हो जाएगी, वाइड अप हो जाएगी, उसको रद्द बादल किया जाएगा, राइट, और जो भी पॉलिसी के हिसाब से इंश्योरी ने प्रीमियम पे किया है वो कुछ भी उसे वापस नहीं मिलेगा, और इन फ्यूचर शायद वो उसका बेनिफिट लेने जाएगा, वो भी वाइड अप हो जाएगा, रद्द बादल वो भी कैंसिल हो जाएगा, वी कैन से नल। सो ये है पहला प्रिंसिपल अटमोस्ट गुड फेथ। आगे जाते हैं हम दूसरे प्रिंसिपल के ऊपर, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी यानी नुकसानी, है। ये नुकसानी का जो भी कंपनसेशन होता है वो मिलना चाहिए। तो ये प्रिंसिपल भी हमें याद रखना है कि जो नुकसान हुआ है, सेट ऑफ इसको हम बोलते हैं, इंडेमनिटी यानी सेट ऑफ, या जो भी नुकसान हुआ है उसको हम बोलते हैं। तो यहाँ से हमें उसको देखना है कि कैसा और कितना नुकसान हो, उसके ऊपर उसकी पॉलिसी के हिसाब से अमाउंट दी जाएगी। लेट्स सी, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इज मेड टू कंपनसेट फॉर द लॉस इनकर्ड बाय द इंश्योरी। तो जब भी आप इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट करते हो या पॉलिसी लेते हो, राइट, तो ये पॉलिसी में कॉन्ट्रैक्ट होता है वो कंपनसेशन के लिए होता है इन द फाइनेंशियल लॉस। अगर फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके सामने उसको कंपनसेशन मिल जाता है।
सो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंश्योरेंस इज द प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, क्योंकि इंडेमनिटी यानी नुकसानी वળતર અને એવું કહેવાય નુકસાની વળતર, વોટ એવર ધ પર્ટિક્યુલર लॉस इज देयर इन द सेंस ऑफ द कंपेंसेशन जो आपको लेना है, उसके सामने जो भी लॉस हुआ है वो आपको वापस मिलेगा. सो दिस प्रिंसिपल, इंडेमनिटी प्रिंसिपल, इज यूज्ड टू डिसाइड हाउ मच द इंश्योरेंस कंपनी विल हैव टू पे टू द इंश्योरी इन द इवेंट ऑफ लॉस इनकम. अब यहाँ पर पॉलिसी के ऊपर जाता है, लेकिन आपने जो पॉलिसी ली है उसके हिसाब से देखना चाहो तो टोटल लॉस कितना हुआ है और टोटल अमाउंट कितनी इंश्योरेंस कंपनी आपको पे करेगी. सो ऑब्जेक्टिव क्या है यहाँ पर इंडेमनिटी का? मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, आपका नुकसान हुआ है उसके सामने आपको पैसा मिलना चाहिए. तो कैसे मिलेगा? हम मैंने पॉलिसी ली है तो मुझे वो कंपनसेशन कैसे करेंगे, राइट? सो एनी पर्सन हु टेक्स एन इंश्योरेंस पॉलिसी कैन गेट ओनली कंपनसेशन फॉर द लॉस एंड ही कैन नॉट अर्न द प्रॉफिट. सब लोग यही करते हैं अभी. they want to earn the profit by selling the different type of the goods whatever the totally damaged. No, that's not good. So for what purpose you took the policy? कि रिस्क होता है, कुछ लॉस होता है, उसके सामने कंपनसेट हो, इसलिए आपको पॉलिसी चाहिए ना. तो वी कैन नॉट, फॉर एग्जांपल माई सेल्फ, वन शॉपकीपर इज देयर एंड आई टुक द पॉलिसी, राइट, एंड मुझे लॉस होगा तो मैं वहाँ से प्रॉफिट कैसे कमा सकता हूँ ना? वो तो इंश्योरेंस कंपनी मुझे पैसे दे रही है, तो फिर प्रॉफिट क्यों कमाऊँ, राइट? सो दैट इज़ नॉट गुड. मैं इंश्योरेंस कंपनी से भी पैसे लेता हूँ और जो चीज़ मेरी जल गई है, पानी में डूब गई है, उसके भी पैसे कवर करना चाहता हूँ, वो ना हो सके. सो द पर्सन कैन नॉट अर्न द प्रॉफिट. आई एम टॉकिंग अबाउट द पर्टिकुलरली इंश्योरी. सो इन अदर वर्ड्स ही कैन नॉट गेट एडिशनल अमाउंट ओवर एंड अबाउट द लॉस इनकम. जो लॉस हुआ है उसके ऊपर कुछ बेनिफिट होता है तो वो नहीं ले सकता. कई बार ऐसा होता है, आपको एग्जांपल देता हूँ तो आपको मालूम पड़ जाएगा, राइट? लेट्स टेक वन एग्जांपल. इफ एन इंश्योरी टेक्स अ पॉलिसी फॉर अ प्रोडक्ट एट अ लोअर वैल्यू देन द ओरिजिनल वैल्यू, it is implied that he will proportionately get a lesser amount and a part of the loss will have to be borne by him. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि अगर इंश्योरी ने कोई पॉलिसी ली है, यानी कि मैंने प्रशांत, मैंने एक पॉलिसी ली, समझ लो मेरी शॉप की, प्रोडक्ट समझ लो, अंदर गुड्स पड़े, उसकी शॉप और गुड्स की ले ली, लोअर वैल्यू देन द ओरिजिनल वैल्यू. उसकी ओरिजिनल वैल्यू हो रही है 10 करोड़ रुपीज़. 10 करोड़ की पॉलिसी मीन्स वैल्यू उसकी हो रही है, लेकिन मैंने लोअर वैल्यू की पॉलिसी ली है, 5 करोड़ की पॉलिसी ली. समझ लो ये बात, 10 करोड़ की उसकी ओरिजिनल वैल्यू है शॉप और उसके गुड्स की, मैंने वैल्यू लोअर ली है. उसका इंश्योरेंस जो है वो मैंने कम लिया है, 5 करोड़ लिया है. सो अब क्या होगा? इट इज़ इम्प्लाइड दैट ही विल प्रोपोर्शनली गेट लेसर अमाउंट. तो मुझे क्या मिलेगा? जो भी नुकसान होगा उससे कम मिलेगा ना, क्योंकि पॉलिसी 10 करोड़ की नहीं है, पॉलिसी की वैल्यू 5 करोड़ की है. हालांकि अंदर गुड्स और जो शॉप का टोटल अमाउंट होता है वो 10 करोड़ होता है, लेकिन मैंने पॉलिसी ली है सिर्फ 5 करोड़ की. सो अ पार्ट ऑफ द लॉस विल हैव टू बी बॉर्न बाय हिम. तो बाकी के 5 करोड़ का जो नुकसान होगा वो ओनर खुद, यानी मैं खुद बॉर्न करूँगा, मुझे खुद उसको पे करना पड़ेगा. तो मेरा जो प्रोपोर्शनेट अमाउंट है 5 करोड़ का, उसके हिसाब से ही मेरा लॉस कवर होगा. अच्छा चलो, 10 करोड़ की पॉलिसी नहीं ले, मैंने 5 करोड़ की पॉलिसी, पूरी दुकान जल गई, तो 10 करोड़ का नुकसान तो हो गया मेरा, लेकिन मैंने पॉलिसी तो 5 करोड़ की ली है. तो उसके सामने 5 करोड़ के सामने पैसे मिलेंगे. 5 करोड़ तो मेरा नुकसान ही है, 101%. सो मुझे संभाल के पॉलिसी लेनी चाहिए एज पर द पर्टिकुलर ओरिजिनल वैल्यू मार्केट रेट पर. बाकी पॉलिसी जो हाफ लेंगे तो आपको प्रॉफिट बेनिफिट जो भी है वो हाफ, प्रॉफिट तो नहीं बोल सकते, लेकिन जो भी बेनिफिट है वो हाफ ही होंगे. फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट वन, if a person takes an insurance policy for rupees 3 lakh but the original value of the product is 5 lakh, then in event of the complete loss of the product the insurer will get maximum rupees 3 lakh. तो इस हिसाब से आपको मालूम पड़ गया होगा, मैंने ऑलरेडी एग्जांपल भी दे दिया है आपको कि मैंने पॉलिसी 3 लाख के लिए, वो प्रोडक्ट की प्राइस है 5 लाख. समझ लो मेरे पास मोबाइल फ़ोन की दुकान है, मोबाइल का टोटल प्राइस होता है 5 लाख, लेकिन उसकी मैंने पॉलिसी लिया सिर्फ 3 लाख की. अब लॉस हो गया, पूरे मोबाइल किसी ना किसी तरीके से जल गए, या फिर मैं बोल सकता हूँ कि डूब गए, हैवी रेन में कुछ प्रॉब्लम हुआ, है, तो मुझे 3 लाख से ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा, 2 लाख मेरा टोटली नुकसान है. ये एक है. सेकंड देख सकते हैं, व्हेन द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट इज ₹5 लाख, प्रोडक्ट की वैल्यू 5 लाख है सेम, बट द इंश्योरी हैज़ इंश्योर्ड इट ओनली फॉर ₹3 लाख. तो बराबर है, ये 3 लाख का ऊपर के जैसा ही है. एंड इफ द प्रोडक्ट इज पार्शियली डैमेज विच इज एस्टिमेटेड ₹2 लाख. तो अब यहाँ पर ये साइड में रखो, पहले तो यहाँ तक देखो कि क्या है. 5 लाख के गुड्स थे, मैंने 3 लाख की पॉलिसी ली है, लेकिन 3 लाख की पॉलिसी में पूरा गुड्स डैमेज नहीं हुआ है,
उसमें थोड़ा बहुत गुड्स डैमेज हुआ है, पार्शियली डैमेज हुआ है, राइट। तो पार्शियली जो डैमेज हुआ है उसके सामने मुझे कंपनसेशन मिलेगा, और एज पर द इंश्योरी विल गेट ओनली ₹1,20,000। वो क्यों मिलेगा? क्योंकि यहाँ एक कैलकुलेशन है कि 5 लाख के सामने 3 लाख का है, और 3 लाख के सामने मुझे 3 लाख मिलने चाहिए, लेकिन हमारा पार्शियली हुआ है, तो 5 के सामने 3, तो टोटल अमाउंट जो 2 लाख का हुआ है तो उसके सामने कितना, सो दैट इज़ 1,20,000। ये याद रखना, राइट। इसके हिसाब से, कैलकुलेशन के हिसाब से ही आगे चलना। ये टोटल प्रोपोर्शनेट के अमाउंट से चलता है। मैंने बोला कि ही विल यहाँ पर ऊपर प्रोपोर्शनेटली गेट लेसर अमाउंट, राइट। तो यहाँ ये प्रोपोर्शनेटली कम अमाउंट लेता है, मीन्स कम अमाउंट उसको इंश्योरेंस कंपनी देगी। कीप इन माइंड दिस थिंग, ओके। तो समझ सकते हो आप ये कैसे हो सकता है कि 5 लाख के सामने उसने 3 लाख की पॉलिसी ली है और उसका लॉस 2 हुआ, तो 2 के सामने कितना, तो 3 2 जा 6, दैट इज 6 lakhs डिवाइड बाई 5, तो 12 5 जा 60, so 1,20,000। तो ये इक्वेशन डालना पड़ेगा, और ये सब कुछ रेडीमेड ही होता है सब इंश्योरेंस कंपनी के पास। उसके हिसाब से ऑन दिस स्पॉट विद इन 1 सेकंड दे विल गिव दी पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन कि आपका 2 लाख का नुकसान हुआ, यू विल गेट ओनली 1,20,000 बिकॉज यू टुक द पॉलिसी ऑफ 3 लाख। तो 5 लाख के गुड्स की पॉलिसी नहीं ले, 3 की लिए, तो फिर आपको वैसे ही पैसे मिलेंगे, राइट। सो यहाँ पर he will or insurer will get only ₹1,20,000 as compensation, as it is proportionate amount of 3 lakhs। ये 3 लाख की proportionate amount which is to be insured amount। देखो मैंने एग्जांपल दे दिया आपको। नेक्स्ट वन, when the वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट इज 5 लाख, यानी 5 लाख की आपकी वैल्यू है, 5 लाख की प्रोडक्ट की वैल्यू है, एंड इट इज इंश्योर्ड फॉर द फुल अमाउंट ऑफ ₹5 लाख, और पाँचों की मैंने पॉलिसी ली है। एंड इन द इवेंट ऑफ कंप्लीट डैमेज टू द प्रोडक्ट, द इंश्योरेंस कंपनी विल पे द फुल अमाउंट ऑफ ₹5 लाख टू द इंश्योरी। तो ये भी सही है। पहला था 5 लाख ली, लॉस 3 लाख का हो, 3 ही मिलेंगे। लास्ट में 5 लाख की पॉलिसी ले, 5 लाख के गुड्स से 5 लाख पूरे मिलेंगे। ये दोनों है, बीच का ही थोड़ा आपको ध्यान रखना है, प्रोपोर्शनेट अमाउंट। तो ये बात हुई डियर स्टूडेंट, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, एंड मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जो भी मेन कहा जाए प्रिंसिपल इंश्योरेंस पॉलिसी में, ये इंडेमनिटी है, राइट। नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड वन। तीसरे पर हम जाते हैं, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। द इंश्योरी मस्ट हैव फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन द प्रोडक्ट इंश्योर्ड, यानी जो भी प्रिंसिपल है ये वाला इंश्योरेबल इंटरेस्ट का, तो जो भी इंश्योरेंस पॉलिसी लेता है उसका उसमें इंटरेस्ट होना जरूरी है। तो इंश्योरी मस्ट हैव फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन द प्रोडक्ट इंश्योर्ड। फॉर एग्जाम्पल, उसका खुद का इंटरेस्ट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, द ओनर ऑफ द हाउस हैज़ द फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन अ हाउस, व्हाइल द टेनेंट ऑफ द हाउस डज नॉट हैव द फाइनेंशियल इंटरेस्ट। तो उसका खुद का इंटरेस्ट उसमें होना चाहिए ना, यानी मेरा घर है तो उसकी इंश्योरेंस पॉलिसी मैं ले रहा हूँ, तो उसमें मेरा इंटरेस्ट है। टेनेंट जो है, जो भाड़ुआत है, जिसको हम बोलते हैं लैंडलॉर्ड और टेनेंट, लैंडलॉर्ड यानी मालिक, टेनेंट यानी जो भाड़ुआत है वो, तो वो जो टेनेंट है वो हाउस का में कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट नहीं रखता है। सो उसकी पॉलिसी वो क्यों लेगा? मेरे उंगली की पॉलिसी मैं ले रहा हूँ, मेरे गले की पॉलिसी मैं ले रहा हूँ, मेरी आंखों की पॉलिसी मैं ले रहा हूँ, मेरे पैर की पॉलिसी मैं ले रहा हूँ। तो इट इज़ डिपेंड अपॉन द पर्टिकुलर पर्सन, उसके इंटरेस्ट में होना चाहिए। मैं दूसरों की उंगली की इंश्योरेंस क्यों लूँ? सिंपल है ना, आपको मालूम है ये सब होता है। अभी इंश्योरेंस सबका लिया जाता है, राइट। आपको मालूम कि आपकी ये चीज़ उपयोग में ज़्यादा आती है तो आप उसकी इंश्योरेंस ले लो। क्रिकेटर, डांसर, राइट, फुटबॉलर यानी स्पोर्ट्स पर्सन जो उसके खेल के हिसाब से हो, तो ये इंश्योरेंस जो है इंश्योरेबल इंटरेस्ट वो होना चाहिए। यानी कि जो पॉलिसी ले रहा है उसका उसमें इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए, उसमें उसका कुछ ना कुछ भाग होना चाहिए 100% का। नेक्स्ट एंड लास्ट वन, प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। ये सब्रोगेशन क्या है? इसके सामने जो भी मिलता है वो आपका नहीं है। कहने का मतलब ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर आपका गुड्स डिस्ट्रॉयड हो जाता है तो उसके सामने आपको पैसे मिल जाते हैं, तो यू आर नाउ नॉट ओनर ऑफ दैट गुड्स, द ओनर इज ऑफ दैट गुड्स इज इंश्योरेंस कंपनी, यानी कि जो इंश्योरेंस है वो है। तो दैट इज द सब्रोगेशन। अवेज में इसको अवेज ही बोलते हैं, राइट। आपको कुछ उसका बेनिफिट नहीं होगा 101%। तो हियर व्हेन अ पॉलिसी इज टेकन फॉर एन इंश्योरेबल इंटरेस्ट, यानी प्रोडक्ट का जो भी है, सो व्हेन अ पॉलिसी इज टेकन फॉर एन इंश्योरेबल प्रोडक्ट एंड इफ इट इज फुल्ली डैमेज्ड, टोटली वो डैमेज हो जाती है, एंड व्हेन द इंश्योरेंस कंपनी पेज कंपनसेशन, द फुल्ली डैमेज प्रोडक्ट्स ओनरशिप विल बी विद द इंश्योरेंस कंपनी। यानी ये तीसरा मैंने ऊपर बताया ना आपको, ये वाला
राइट। अगर मैंने 5 लाख की पॉलिसी ली है और मेरा पूरा अमाउंट 5 लाख है वो कंपनसेशन हो जाता है, इंश्योरेंस कंपनी मुझे सब पैसे दे देती है, तो जो भी वो कचरा बचा है, राइट, हम कचरा ही बोलते हैं उसको। अगर कचरा नहीं बोलना है तो हम उसको ऐसा बोलते हैं कि वो जो भी स्क्रैप है वो हमारा नहीं है, वो इंश्योरेंस कंपनी का होगा, क्योंकि उसका 5 लाख का जो भी नुकसान था वो सब इंश्योरेंस कंपनी ने दे दिया। सो उसके ऊपर हम कोई भी टाइप का, राइट, हमारी ओनरशिप नहीं डाल सकते। दैट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन, राइट। तो कंपनी हमें पूरे पैसे देती है, डैमेज प्रोडक्ट की ओनरशिप हमें पास ऑन करनी पड़ती है, राइट, टू द इंश्योरेंस कंपनी। सो दिस प्रिंसिपल इज नॉट एप्लीकेबल इन द केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। उसके टाइप आएंगे बाद में, यहाँ ही है, देख लो, टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, टाइप ऑफ इंश्योरेंस, लाइफ एंड जनरल। तो लाइफ में इस ये प्रिंसिपल नहीं चलता है, उसमें पहले 3 ही चलते हैं। क्योंकि क्यों नहीं चलता है? क्योंकि हमारा डेथ हो जाता है ना, फॉर एग्जाम्पल उसके लिए हमने पॉलिसी ली है तो फिर उसके ऊपर तो ऐसा होता नहीं है ना, राइट। तो ये समझने की बात है कि लाइफ इंश्योरेंस जो होता है उसमें ये डैमेज का कुछ इंश्योरेंस के हिसाब से नहीं चलता। So dear students, here we discuss, or today I completed the first portion of the insurance, that is introduction, insurance meaning, policy, premiums, principles, 4 देखे हमने अलग अलग, राइट। नेक्स्ट में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस का एक लिस्ट जो आपके सामने अभी दिख रहा है, ये एक लिस्ट है, याद रखना है लिस्ट, कैसे ऐसे इंश्योरेंस हो सकते हैं। और उसके बाद हम लाइफ इंश्योरेंस में जाएंगे और सम ऑफ द इंश्योरेंस विच आर इंपॉर्टेंट फॉर द गोस्ट ट्रांसपोर्टेशन, नेक्स्ट में उसको देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।